काई स्क्वायर टेस्ट के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि एक सैंपल डेटा ले लेते हैं और हम चेक करते हैं कि ये हमारी हाइपोथेसिस यहाँ पर रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी. सो वी विल क्रिएट अ टेबल लाइक डिपार्टमेंट and number of students. Okay, so there are 5 departments. Let's make it 5, like ME, that is mechanical, computer science, CSE, another is let's say ECE, electronics, EE, and civil. Okay, so we assume there are 5 departments and the number of students in these departments are 9, 13, 6, 2 and again let's say 6. Okay, so our hypothesis said is there is a significance difference according to the departments. यानी हमको जो विद्यार्थियों का एक सिग्निफिकेंस डिफरेंस है डिपार्टमेंट के आधार पर, ये हम लोग मान के चलते हैं कि ये नहीं है. हम ये मान के चलते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिपार्टमेंट. तो हमारी एक हाइपोथेसिस ये हो गई. अब हमको टेस्ट करना है और हमारे पास ये डेटा आ गया है. तो अब यहां हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट कैसे लगा सकते हैं वो हम लोग देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल the step number 1, you have to find out, that is FE. Since you have FO, observed frequency, you already have, and you have to find out FE, that is expected frequency. Okay, so how will you find it? Just calculate this and just add, that is 36 divided by number of items, that is 5. So the expected frequency is 7.2. Okay, or you may say 7. Let's make it 7 for better calculation. Okay, and now the step number 2 is you have to create a table like we just clear this so we can make our calculation here. So that is FE, that is FO, observed frequencies, and FE. FE is 7 for every case. Okay, let's make it 7. So the one more row is created. Okay, now the next step you have to find out FO minus FE, means difference between observed frequency and expected frequency. So that is 2 6, 1, minus 5 and minus 1. Here minus 1. Now the next step you have to find out FO minus FE square. Okay, so why are we doing these all things? Since the formula of chi square is FO minus FE square divided by FE and the summation of whole this. Okay, so we are now finding this and then we will find out this whole thing by dividing FE into this. So first we have to find out FO minus FE square. If we square this, all the negative value becomes positive. Okay, so that is 4, that is 36, that is minus 1 become 1, minus 5 become 25 and minus 1 become again 1. Now the next step is to find out FO minus FE square divided by FE. So here that will be 4 divided by, sorry, this 4 divided by 7. So that will be 0.57 and 36 divided by 7, that will be 5.14. 1 divided by 7, that will be 0.14
25 divided by 7, that will be 3.57, and 1 divided by 7, so again that is 0.14. So here we calculated all the values that is necessary for our chi-square, for finding the chi-square. Okay, the next step now to find out the summation of these all values, since the summation here, so we will find out that will be 9.56. So we find out that the value of the chi-square is 9.56. And now the next step is to find out the degree of freedom. So degree of freedom is r minus 1 and c minus 1. Here r is row and c is column. So in our case, that is 1 into 4 means 4. So df is 4. So we will look into the chi-square table and chi-square table at 5. So we will find out the value of chi-square at 0.05 for degree of freedom 4, for df equal to 4. So we will find out the value, that is, after looking at the table, that is 9.488. Okay. Now chi-square value, our value is 9.56 and the chi-square critical value as per in the table, that is 9.488. So what is the significance of these values? So if your chi-square value is, if your chi-square calculated value is greater than the chi-square critical value, then you reject your null hypothesis. And if your chi-square value calculated value is less than the chi-square critical value, then you fail to reject your null hypothesis. So I think आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये chi square वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है. तो अगर हमारी chi square वैल्यू ये 9.56 है, ये लगभग इसके बराबर ही है. मैं आपको हिंदी में और बता देता हूं कि ये लगभग इसके बराबर है. अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आती, मान लीजिए आपकी जो chi square की वैल्यू है, चलिए नीचे करता हूं, आपकी जो chi square की वैल्यू है वो आती 20 या 20.5, और अगर आप टेबल में जाके देखते हैं, यहां पर इसके लिए जो वैल्यू जो होती है 0.05 के लिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखते हैं, वो होती मान लीजिए 9.4, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती. इस केस में आप अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते थे. लेकिन अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है या इसकी वैल्यू इससे कम है, आपकी जो chi स्क्वायर की वैल्यू निकली है, जैसे कि अब हमारे केस में, इन अवर केस, हमारे पास जो chi स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो आई है, कितनी आई है भाई, 9.56, और क्रिटिकल वैल्यू जो है 0.05 के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 पर, वो है हमारा, वो निकल के आया है यहां पर 9.488. तो लगभग ये बराबर ही है. अब ऐसे केस में क्या हो गया भाई, ये चल क्यों नहीं रहा? हाँ, तो ऐसे केस में क्या होगा, हम अपनी जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करने में असफल हुए हैं. वी आर फेल्ड टू रिजेक्ट अवर नल हाइपोथेसिस. अब इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इसके लिए या तो हमारे पास और डेटा आ जाए, या फिर हम उस डेटा को मॉडिफाई कर लें, या हम ऐसा सैंपल कलेक्ट करें जहां से हमारा डेटा हमारा सही हो जाए, या हमारी हाइपोथेसिस हम लोग इसको रिजेक्ट कर पाए, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम पास कर पाए. तो ऐसा केस में हम लोग ऐसा कर सकते हैं. वैसे ये करना सही नहीं है. तो ये है हमारा chi स्क्वायर टेस्ट का सिग्निफिकेंस. अब हम देखेंगे कि chi स्क्वायर टेस्ट, मान लीजिए आपके पास दो कैटेगरी है. यहां पर अभी जो हमने देखा वो chi स्क्वायर के लिए जो कैटेगरी थी वो एक थी. अब मान लीजिए आपके पास यहां पर दो कैटेगरी हैं. सो इफ देयर आर टू कैटेगरीज, व्हाट विल यू डू? सो लेट्स मेक अ टेबल दैट इज boys and girls, and as per their choice, the choice of beverages. Beverages कौन कौन से हो सकते हैं भाई? Let's make tea,
कॉफी, ये लाइन तो भाई टेढ़ी हो गई, इसको सही किया जाए। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं टेबल और शेप्स का यूज कर लेते हैं भाई, इंक टू शेप कर देते हैं। चलिए, ये बड़ी अच्छी चीज है। ओके, तो यहां पर हम लोग बना देते हैं, यहाँ कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये दो कैटेगरीज तो पहले तो हो ही जाएंगी। ये हो जाएगा एक हमारा बॉयज का कॉलम और ये हो जाएगा हमारा गर्ल्स का कॉलम। इसको मैं सीधा कर देता हूँ लाइन को, इसको भी सीधा कर देता हूँ। ओके, ये हो गया बॉयज और गर्ल्स, ये हो गया हमारा। अब यहां पर इनकी प्रेफरेंस हम लोग देख लेते हैं, तो दैट इज टी, ठीक है, टी के लिए हमने टी लिख दिया है, कॉफी के लिए CO लिख दिया है, COFF। ओके, एक और ले लेते हैं यहाँ पर, दैट इज कोल्ड ड्रिंक के लिए हमने कोल्ड लिख दिया है। और क्या करते हैं भाई, शेक हो जाता है भाई, चलिए चॉकलेट शेक भी लोग पीते हैं, तो यहाँ हमने ये कर दिया शेक के लिए, शेक कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास इस टाइप का मान लीजिए कैटेगरी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर हमको दो चीजें और ऑब्जर्व करना है कि क्या बॉयज और गर्ल्स की संख्या बराबर है या अलग अलग है, ठीक है, तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो अभी हमारे पास जो सैंपल है इसमें बॉयज और गर्ल्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल। तो चलिए टी के लिए तरफ जाते हैं। तो मैं गया अभी कैंटीन में और मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया यहाँ पर, तो मैंने देखा कि जो चाय पीने वाले लड़कों की संख्या है वो है 30 और गर्ल्स की संख्या जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स है 8। सेम इन द केस ऑफ कॉफी, आई फाइंड आउट देयर आर 18 बॉयज एंड 25 गर्ल्स हु परचेज कॉफी, and in case of cold drink there are 17 boys and 19 girls, and in case of chocolate shake that is 9 and 22. So if you look at this, that is number of boys is 74 and number of girls are also 74. So the calculation will be much easier in that case. तो अब ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, तो ऐसा इसके लिए हम लोग क्या सॉल्यूशन करेंगे, अगर हमको chi स्क्वायर टेस्ट लगाना है तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू क्रिएट अ टेबल फॉर दिस। तो पहले हम लोग इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं, इसी में एक कॉलम और हम लोग जोड़ देते हैं। इंक टू शेप चल रहा है भाई ये, लेकिन कर क्यों नहीं रहा। तो यहां पर हम लोग कर लेते हैं टोटल, ठीक है, थोड़ा इसका इंक का कलर चेंज कर देते हैं, इससे थोड़ा क्लियर दिखता रहे। तो ये जो टोटल है हमारा, ये आ गया है 38, इधर यहाँ पर आएगा 38, ये आ जाएगा 43, इधर आ जाएगा 36, इधर आ जाएगा हमारा 36 और ये 31 और ये 74 प्लस 74 ये आ गया हमारे पास 148। देखिए अब ये दोनों की यहाँ पर वैल्यू सेम है, तो अगर मैं n की वैल्यू देखूं यहाँ पर तो 148 आ जाएगी इधर, ये आपको एक बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हमको क्या पता करना, अब हमको सबसे पहले देखिए वहां पर हमने एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी थी वो तो निकाल ली थी, बट इन दिस केस हमको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगी सभी के केस में अलग अलग, चाय के लिए, कॉफी के लिए, और लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग 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 आएगा। देखिए तो पहले हम लोग मान लेते हैं बॉयज के लिए कैसे निकालना है। ओके, तो चलिए फॉर बॉयज, बॉयज के लिए हम लोग सबसे पहले जो हम लोग निकालने वाले हैं फॉर टी के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। टी के लिए कैसे निकालेंगे भाई, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यानी FE जो आएगा टी के लिए वो आ जाएगा हमारा सिग्मा FO इंटू सिग्मा FC और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा हमारा N, ठीक है। तो ये देखिए, तो FO क्या है यहाँ पर, FO यानी कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो आएगी हमारी दोनों की मिला के टी के लिए दैट इज 38, ये 38 ले लिया, और सिग्मा FC, ये FC क्या है, ये है ये
ठीक है, तो ये आएगा हमारा इंटू 74 डिवाइडेड बाय एन, एन की वैल्यू है यहाँ पर 148। अच्छा, यहां पर लड़के और लड़कियों की संख्या दोनों बराबर है, इसलिए FC गर्ल्स के केस में और बॉयज के केस में बराबर रहेगा, यानी 74। अगर ये सैंपल हमारा अनइवन होता है, यानी कि आपने लड़के ज्यादा रख ली लड़कियां कम रख ली, तो उस केस में फिर यहां पर हमको डिफरेंस पता चल जाता है। ये FC लड़कों के केस में अलग होता, लड़कियों के केस में अलग होता। तो ये सिग्मा FC है फॉर बॉयज और ये सिग्मा FC है गर्ल्स। यहां दोनों बराबर हैं, इसलिए दोनों में 74 आ रहा है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये कैलकुलेट करने पे हमारे पास आ गया है 19। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमको चाहिए किसके लिए, कॉफी के लिए, कॉफी पीने वालों के लिए भी चाहिए भाई। तो अब हम चाय भी है कॉफी भी है भाई, हम तो ऐसे हैं कि चाय के ऊपर कॉफी पी लेते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पिला दे तो कोल्ड ड्रिंक भी पी लेंगे, और कोई उसके ऊपर आइसक्रीम शेक भी पिला दे तो वो भी पी लेंगे, आइसक्रीम भी खा लेंगे। फ्री में मिलते रहना चाहिए, जो भी कुछ देना चाहे हम सब खा पी जाते हैं। ठीक है, तो ये रही कॉफी। तो कॉफी के लिए यहां पर आएगा 43 इंटू दैट इज 74 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 148। तो ये कॉफी के लिए वैल्यू बॉयज के लिए आ गई 21.5। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमारे पास ये हमको कोल्ड ड्रिंक के लिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए क्या है भाई वैल्यू, ऊपर देखते हैं हम लोग, कोल्ड ड्रिंक के लिए है 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 36 इंटू 74 डिवाइडेड बाय 148 और ये आ जाएगा हमारा 18। और इसी प्रकार से शेक था जो चॉकलेट शेक, उसके लिए हम लोग उठा लेते हैं यहाँ पर 31 इंटू 74 डिवाइडेड बाय 148, तो ये आ गया हमारा 15.5। ये चार वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, अब सेम काम हमको करना है गर्ल्स के लिए, लेकिन हमारा यहाँ काम बचने वाला है। क्या बच रहा है भाई, देखिए अगर मैं गर्ल्स के लिए कैलकुलेशन करूं यहां पर, ठीक है, तो अगर मैं गर्ल्स के लिए इसका कैलकुलेशन करता हूं तो उस केस में भी वैल्यूज जो है हमारी वही आने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स सेम है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे FE निकालता हूं मैं यहां पर F0, तो F0 यहां पर क्या रहेगा 38 और ये भी 74 रहेगा। तो जो डिफरेंस आएगा गर्ल्स और बॉयज में वो आ रहा था हमारा इन दोनों से, लेकिन ये दोनों हमारे पास सेम है तो ये वैल्यूज हमारे पास सेम आ जाएंगी। तो यहां पर FE गर्ल्स के लिए भी वही होगा 19। ठीक है, और टी के लिए FE जो होगा हमारा, ठीक है, वो होगा ये 19। कॉफी के लिए भी हमारा होगा जो FE वो होगा 21.5। कोल्ड ड्रिंक के लिए जो हमारा होगा FE वो होगा 18 और शेक के लिए जो होगा FE वो आ जाएगा हमारा 15.5। ये बराबर आ जाएगा। तो अब ये हमारा एक काम हो गया कि भाई हमको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पता चल गई है गर्ल्स और बॉयज दोनों के केस में। अब अगला जो काम है हमारा वो हमको क्या करना है, चलिए देखते हैं। हमको यहाँ पर एक टेबल और बनाना पड़ेंगे। अब आप कहेंगे फिर से टेबल बनाने लग गया ये, तो भाई ऐसा ही है, यहाँ पर करना तो पड़ेगा हमको, ये बहुत सारी टेबल्स बनाना पड़ेंगी। तो एक टेबल बस, दो टेबल और बनेंगी है टेक्निकली वैसे तो गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज हमारी सेम है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बॉयज के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है FE जो चाहिए था हमको। इसको बंद करें। तो यहां पर टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और शेक, तो ऐसा बना देते हैं, इनटू शेप कर देते हैं। तो ये हमारी टेबल भी बन के तैयार हो जाएगी। तो अब यहां पर F0 यहां लिख देंगे हम लोग FE, आप बना सकते हैं हम लोग F0 माइनस FE और F0 माइनस FE का स्क्वायर, और अगला जो रहेगा F0 माइनस FE, इसका स्क्वायर करने के बाद डिवाइड कर देंगे FE से, तो जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग FO को। तो यहाँ पर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो थी वो थी 30
कॉफ़ी के लिए जो थी वो थी हमारी 18, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक के लिए, अरे ये क्या हुआ, कोल्ड ड्रिंक के लिए थी हमारी 17 और ये था हमारा 9, ठीक है। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई गई है जो अभी हमने निकाली है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर किया जाए तो ये रही हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ये दोनों के केस में बराबर हैं। तो 19 21.5 ये लिख देते हैं भाई, ये 19 21.5, ये हो गया 18 और ये हो गया 15.5। अरे 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 ये क्या हो रहा है, चलते चलते वन नोट क्रैश कर गया था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी आ गया हमारा FO माइनस FE, हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर। अरे अभी ये तो रह गया, ये है 15.5। तो हम इन दोनों को कर देते हैं माइनस, तो हमारे पास जो वैल्यूज मिलेंगी हमको वो मिलेंगी, यहाँ पर आएगी 11 और दैट विल बी 12.25, 21.5। अरे ये क्या लिख रहा हूँ मैं, दिमाग घूम गया मेरा। 19 20 21 दैट विल बी 3.5 और 17, ये हो जाएगा हमारा -1, दैट विल बी -6.5। ओके, नाउ अब हम कर देते हैं इसका स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर 121, दैट इज 12.25, दैट इज 1, दैट इज 6 36 6 42 42.25। और अब हम कर देते हैं इसको डिवाइड, ये एक कॉलम ज्यादा बन गया लगता है ना। ओके, ये मेन चीज तो हमारी यही है जो हमको निकालना है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। तो यहां हम लोग निकालने वाले हैं F0 माइनस FE, इसका स्क्वायर। ये तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे FE से। तो ये क्या आएगा देखते हैं। तो 121 को डिवाइड किया 19 से, 121 डिवाइडेड बाय 19। 19 कौन सा है भाई, ये रहा, डिवाइड कर देंगे भाई। चलिए, तो ये फाइंड आउट हुआ हमारा 6.36। इसी प्रकार से यहां पर 0.569, ये क्या होगा भाई, 1 को डिवाइड करो 17 से, 0.05 18 से डिवाइड करो, सॉरी। तो ये हो जाएगा 0.05 और ये आ जाएगा हमारा 2.72। ठीक है, तो हमारे पास ये टेबल आ गई और ये वैल्यूज भी आ गई हैं। अच्छा, ये तो बॉयज के लिए था, अगर हम गर्ल्स के लिए करेंगे अब यही कैलकुलेशन। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए भी हमको सेम वही करना पड़ेगा। यहां पर F0 की वैल्यू जो है और FE की वैल्यू तो वही है, लेकिन यहाँ F0 की वैल्यू हमारी चेंज होने वाली है। ठीक है, तो F0 की वैल्यू गर्ल्स के लिए हमारे पास क्या थी, तो T के लिए हमारे पास थी 8 और कॉफी के लिए थी 25, इसके लिए थी 19, इसके लिए थी 22। FE की वैल्यू यहाँ पर चूंकि नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आर सेम, सो जो FE निकला था वो दोनों के केस में बराबर निकला था। 19 21.5, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 15.5। ओके, अरे कौन चिल्ला रहा है भाई ये बाहर। F0 माइनस FE, वीडियो बनाने जाओ बहुत सारे डिस्टर्बेंस होता ही है। F0 माइनस FE अगर हम निकालें इसका तो ये आ जाएगा 11 और ये आएगा हमारा 3.5। देखिए वैल्यू सब सेम आ रही है, बस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एक ये जो वैल्यू नेगेटिव में थी ये पॉजिटिव में आ रही है, लेकिन हमने यहाँ पर कर दिया है स्क्वायर, तो ये बाद में एंड ऑफ द कैलकुलेशन सब होना तो इनको प्लस में ही है। अगला जो हमको फाइंड करना है F0 माइनस FE का स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 121, ये फिर से हो जाएगा 12.25, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 42.25। ठीक है, इसी प्रकार से similarly you have to find out F0 minus FE square divided by FE, so you will find out you will experience that same value. You can observe the same value here, 0.569, 0.05 and that is 2.72. okay,
सो द स्टेप्स ऑल द कैलकुलेशन आर कंप्लीटेड। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अच्छा ये किसके लिए थी, ये लिखना भूल गए हम लोग, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और शेक के लिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू वही सिग्मा F0 माइनस इसका एडिशन, सिग्मा मीन्स इनका एडिशन करना है। अच्छा, इनका एडिशन, हमारे पास कैटेगरी कितनी है यहाँ पर देखिए वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 ही हैं और 4 ये वैल्यूज हैं ऊपर वाली, तो इन सबको ऐड कर देते हैं हम लोग, इन सबको ऐड कर देते हैं, मतलब यानी कि हमारे पास जो निकलेगा 3.636 प्लस 0.569, ये बॉयज के लिए कर रहे हैं हम लोग 0.05 और प्लस इसी में गर्ल्स का भी कर देंगे 2.72 प्लस 6.36 अगेन प्लस 0.569 प्लस 0.05 प्लस 2.72। ठीक है, तो ये आ गया हमारा काई स्क्वायर, और काई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर जो आई है दैट इज 18.373। ये आ गई हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू, हाईलाइट कर दें इसको, अरे ये तो इरेजर थी, सॉरी, 18.373। अब ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है, अभी हमको एक काम और करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो क्या होगी, R-1 इंटू C-1। सो इन आर केस दैट विल बी 2-1 एंड 4-1। तो ये आ गया हमारा कितना, 3। तो हमको देखना है काई स्क्वायर की टेबल में एट 5% पर देखना है, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है हमको वो लेना है 3। तो अगर हम टेबल में देखें तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पर 5 के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 के लिए जो वैल्यू है काई की, जो काई स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7.815। ये टेबल में लेगी आपको, तो आपको टेबल याद करने की आवश्यकता नहीं है, टेबल आपको इंटरनेट में मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखिए अब हम ये कह सकते हैं कि जो काई स्क्वायर है 0.05 के लिए जो क्रिटिकल वैल्यू है एट 3 DF की वैल्यू 3 है, उसके लिए जो आ रहा है 7.815 आ रहा है, और हमारी जो काई स्क्वायर की वैल्यू जो ऑब्जर्व है वैल्यू वो जो आ रही है वो आ रही है 18.373। तो उससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे हमारा ये सिद्ध हो रहा है कि हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है ये हमारी हम लोग अप्रूव कर पाए हैं, उसको हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट हमने कर दिया है। ठीक है, तो ये हम लोग उस पर कहना चाह रहे हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट लगा सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मैंने थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश की है, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करके जरूर जाना, और जिनको ये वीडियो चाहिए उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब इसको मैं कर रहा हूँ साइनिंग ऑफ।